My lovely students, welcome to Mathological. In the fourth session on probability. Start करते हैं session को, and if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT or join the Mathological channel on Telegram. So first question, a biased coin is tossed. Odds in favor of getting ahead are 2:3. If the coin is flipped 6 times, then we have to find the probability of getting at most 2 heads. Odds in favor are given as 2:3. So first of all, we need to understand what are the odds, what is the meaning of odds, and how to calculate probability from the given odds. ठीक है, and then we also have to understand binomial probability, और उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से आएंगे. So let us understand the meaning of odds first. ठीक है, so for example, let us say a question is saying that odds in favor of India winning a test match, that is equal to 7:4. Odds in favor of India winning a test match, that is 7:4. जब भी कभी ऐसा मेंशन किया हो कि odds in favor, there will be two languages. One is odds in favor, second could be odds against. Same thing can have been written as odds against India winning. कैसा लिख गया winning? A test match, that is 4:7. There are two ways to write whenever we are mentioning probability in terms of odds, कि odds in favor या फिर odds against, which is exactly the opposite. Odds in favor implies that if India wins the test, the odds in favor of India winning the test are 7:4. So the first thing is telling us about the favorable condition, or basically India winning the test match. And the second thing is about against, the odds against India. यानी कि 4 is the chances of India not winning. बट अगर मेंशन है odds against India winning, तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज अबाउट इंडिया नॉट विनिंग, बिकॉज अगेंस्ट मेंशन कर रहा है odds. और जो सेकंड थिंग है दैट शुड बी अबाउट इंडिया विनिंग द टेस्ट मैच. क्या ये क्लियर है? तो जब अगेंस्ट मेंशन होगा तो फर्स्ट वैल्यू मेंशनड इज अबाउट अगेंस्ट ऑफ odds against that event जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. एंड व्हेन it is odds in favor, तो फर्स्ट वैल्यू इज अबाउट odds in favor of that particular event. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग इन सच ए केस. तो इफ ऑड्स इन फेवर आर 7:4, यानी कि 7 आउट ऑफ टोटल 11 टाइम्स, 7 + 4 टोटल 11 टाइम्स में से इंडिया विल बी विनिंग 7 टाइम्स. दैट इज द मीनिंग of this odds in favor scenario, कि out of total 11, 7 + 4 11 times, India will be winning 7 times. So favorable conditions are 7 times out of 11, so 7/11 will be probability of India winning. Now not winning does not mean India losing, क्योंकि ड्रॉ भी हो सकता है टेस्ट मैच. ठीक है, so 4/11 is the probability for a draw or a loss. Is that clear? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? सिंपल सी बात है. ओके ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से एक बार. Yes, there are 3 events A, B and C, out of which exactly one must happen. डिफरेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार बाद में लेंगे जब एक बार बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट. देयर आर 3 इवेंट्स A, B and C, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली वन मस्ट हैपन. ठीक है, एग्जैक्टली वन मस्ट हैपन यानी कि कम से कम एक इवेंट होना चाहिए और एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए और होना जरूर चाहिए. सो A, B and C में से एग्जैक्टली वन इवेंट मस्ट हैपन, यानी कि इधर A विल हैपन और B विल हैपन और C विल हैपन एंड एटलीस्ट वन मस्ट हैपन. So in total scenario, probability of A happening plus probability of B happening plus probability of C happening क्या होगा? बिकॉज सारे केसेस हमें कवर करने हैं एंड दिस इज एग्जॉस्टिव. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं, कोई भी इवेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एग्जैक्टली वन मस्ट हैपन. सो दिस टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1. क्या ये पार्ट क्लियर है कि दिस टोटल प्रोबेबिलिटी दिस शुड बी इक्वल टू 1? दैट इज फॉर श्योर. नाउ वी ऑल्सो नो दैट ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट A आर 3:5. odds in favor of event A that are 3:5, यानी कि फेवर में कितना चांसेस है? 3, अगेंस्ट है 5, 3 + 5 8, टोटल आउट ऑफ 8 टाइम्स 3 टाइम्स इवेंट A विल बी हैपनिंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हैपनिंग दिस विल बी 3 आउट ऑफ टोटल 3 + 5, 3 आउट ऑफ 8. सिमिलरली ऑड्स अगेंस्ट B आर 7:4. अब B के अगेंस्ट में 7 है,
फेवर में 4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग दैट विल बी 4 टाइम्स आउट ऑफ 4 + 7 यानी कि 4/11 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग. तो यहाँ से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हैपनिंग, इजंट इट सो? बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 1. 3/8 plus 4/11, 3 into 11, 33 plus 32, so this is equal to 65/88 plus probability of C that is equal to 1, and hence probability of C will be 1 minus 65/88, that is 23/88. So probability of C is 23/88 यानी कि out of 88 times 23 times event C will be happening. हमें चाहिए odds in favor of event C. तो 23 are in favor और अगेंस्ट में क्या होगा, यहाँ पे 88 नहीं आएगा, अगेंस्ट में आएगा 88 minus 23. So this will be 23:65. Odds in favor of event C happening that will be 23:65. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this clear? ठीक है. और इन जनरल अगर इसी बात को जनरलाइज करें, सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, लेट अस से प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट हैपनिंग इज इक्वल टू P/1. P probability है, P is same as P/1. So if probability of event happening is P/1, that implies कि P are the chances, P are the favorable outcomes, और टोटल 1 में से P आउटकम्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस इज P + 1 - P हमने मेंशन किया इस तरह से. ठीक है. सो 1 को वी कैन रीअरेंज एज P + 1 - P. नाउ P आर द फेवरेबल चांसेस एंड 1 - P आर अनफेवरेबल चांसेस या अगेंस्ट चांसेस. ठीक है. तो फेवर वाले चांसेस हो गए P, अगेंस्ट वाले चांसेस हो गए 1 - P. तो ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वहां से ऑड्स इन फेवर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो ऑड्स इन फेवर विल बी इक्वल टू P in favor and 1 - P against, and odds against will be 1 - P is to P. So if probability is given, we can always find out odds in favor as well. ठीक है. ऑड्स इन फेवर से तो प्रोबेबिलिटी निकालना सीख ही लिया था, अब ये भी सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी अगर गिवन होगा तो वहां से ऑड्स इन फेवर भी निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. तो दिस कॉन्सेप्ट इज आई बिलीव अंडरस्टूड, एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नाउ, दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. नाउ लेट अस toss a coin 5 times. We are tossing a coin 5 times, and let's say question is asking probability of an outcome that is 2 heads followed by a tail and then again a head, then again a tail. So what will be probability of head, head, tail, head, tail? Now all 5 coin tosses are independent, तो सबके लिए इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी निकाल के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. इजंट इट सो? ऑल कॉइन टॉस आर इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट आउटकम शुड बी हेड. नाउ हेड विल बी कमिंग विद द प्रोबेबिलिटी 1/2. सेकंड आउटकम विल बी अ हेड, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. थर्ड आउटकम इज अ टेल, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. फोर्थ इज अ हेड, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, एंड लास्ट इज अ टेल, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, दैट इज 1/32. या स्ट्रेट अवे भी कह सकते थे कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 5 कॉइन टॉसेस हैं, 2 to the power 5 यानी कि 32 आर टोटल आउटकम्स, टोटल केसेस. एंड आउट ऑफ दीज 32 केसेस हमें चाहिए क्या, सिर्फ एक ही इवेंट गिवन है, दैट इज हेड, हेड, टेल, हेड, टेल. एग्जैक्ट सीक्वेंस गिवन है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज एक्जैक्टली 1. तो एग्जैक्ट सीक्वेंस गिवन है यानी कि ओनली 1 आउटकम इज फेवरेबल आउट ऑफ 32. तो 1/32 विल बी अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटकम. इज अंडरस्टूड? सो क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. अब इसी बात को देखो, ये कह सकते हैं 3 हेड्स 2 टेल्स है, बट इन अ डेफिनेट वे, इन अ डेफिनेट मैनर. फर्स्ट आउटकम हेड होगा, सेकंड हेड होगा, थर्ड विल बी टेल, फोर्थ विल बी हेड, फिफ्थ विल बी टेल. एक डेफिनेट वे में. बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. बट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वाज इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वाज इक्वल टू बी, तब क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे कि पहले हमें चाहिए हेड, तो हेड का प्रोबेबिलिटी विल बी ए, देन अगेन हेड, प्रोबेबिलिटी विल बी ए, देन टेल, प्रोबेबिलिटी विल बी बी, then head probability A, then tail probability B. So this becomes A cube B square. Here A is the probability of head and B is the probability of tail. यानी कि probability of head का whole cube, because हमें चाहिए 3 times head multiplied by probability of tail का whole square. अगर कॉइन हमारा बायस्ड होता या कोई ऐसा इवेंट होता जहां पे कि हमारे पास हेड और टेल का या 2 इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होता, 1/2 नहीं होता, तो डेफिनेटली फिर वहां पे हमें फॉर्मूला डिफरेंटली अप्लाई करना पड़ता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट which has to happen 3 times का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग केसेस का होल स्क्वायर. इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये पार्ट समझ में आता है? और फिर क्वेश्चन हमसे पूछता है, लेट अस से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इफ कॉइन इज टॉस्ड 5 times,
व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स एग्जैक्टली। अब ये 3 हेड्स किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो इन सच ए केस इफ वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, देखो एक तरीका तो था क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली वाला मामला है, तो सिंपली स्ट्रेट अवे हम कहते हैं कि टोटल केसेस कितने हैं हमारे, टोटल केसेस आर 32, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल केसेस। नाउ वी नीड टू नो फेवरेबल केसेस, कितने केसेस फेवरेबल होंगे, वी नीड 3 हेड्स आउट ऑफ टोटल 5, तो 5C3 वेज से वी कैन फाइंड आउट इन विच प्लेसेस वी नीड हेड्स, और बाकी सब जगह आ जाएंगे टेल्स, तो 5C3 आर फेवरेबल केसेस। तो 5C3/32 यानी कि दैट विल बी 10/32, दैट शुड बी आवर आंसर। ये तो स्ट्रेट अवे तरीका है, ठीक है। बट इसी फॉर्मूले को अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सो इन दैट केस वी नो 3 हेड्स चाहिए हमको और 2 टेल्स विल बी रिमेनिंग, तो 3 हेड्स आएंगे तो रिमेनिंग 2 विल बी टेल्स। ओके, सो आउट ऑफ 5 प्लेसेस हमें चाहिए 3 प्लेसेस पे हेड्स, आउट ऑफ 5 टॉसेस वी नीड 3 हेड्स, तो 5C3 आर वेज to get 3 heads. Now probability of head का whole cube यानी कि 1/2 is the probability of head whole cube and then probability of tail का whole square because we need 2 tails. तो 1/2 whole cube into 1/2 whole square, so that is equal to 10/32. Because जब हमारी events equally likely नहीं होंगी तो वहां पे we need to use this formula only. Then this method will not work. ठीक है, यहाँ पे तो वर्क कर रहा है because events are equally likely, but otherwise this method will not work. That is why we need to understand this second formula. क्या ये appreciate कर पा रहे हो? क्लियर है? तो क्विकली समराइज करते हैं वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। दैट इज इफ लेट अस से कि n इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग इज टॉस्ड, फ्लिप्ड और वट एवर, ठीक है, या फिर टारगेट हिट करना है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज n एंड r इज सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। एंड इन दैट केस इफ p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, भैया तो सक्सेस होगा या फिर फेल होगा, फेलियर होगा, तो इन दैट केस 1 - p विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड हेंस if we need probability of r successes out of n, r successes out of n, so that can be, हमें चाहिए r out of n should be successful attempts, so NCR से we will be selecting the places for those successes multiplied by success का probability कितना है, p है, and we need r successes to p to the power r and then 1 minus p, that is failure to the power n minus r, because remaining n minus r times पे failure होगा, so this will be our formula for r success out of n. Is that clear? ठीक है, is this part clear? If that is understood, then let us to the next question. That is, Ravi shoots 5 arrows. Find the probability that he hits the target 4 times if he has a 75% chance of hitting the target each time. 75% chance of hitting the target each time. Can we find out probability of Ravi hitting the target? Probability of a hit क्या होगा? 75% which is equal to 3/4. 75% is 75/100, that is 3/4, यानी probability of him hitting the target is 3/4. तो definitely probability of missing the target क्या होगा? That will be 1 minus 3/4, that is equal to 1/4. And we need Ravi to hit the target 4 times out of total 5 arrows. तो 5 arrows से 5 में से 4 times we need Ravi to be successful, exactly 4 times. ठीक है, so probability of him hitting target 4 times, so 4 hits का probability in this case will be equal to 5C4, that is the 4 hits that we need to happen. ठीक है, उनका अरेंजमेंट, उनका सिलेक्शन 5C4 मल्टीप्लाइड बाई probability of hit to the power 4 यानी 3/4 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई probability of miss to the power 1 या 1/4 to the power 1. 5C4 is equal to 5, 3 to the power 4 is equal to 81 and divide by 4 to the power 4 into 4 to the power 1, that is equal to 4 to the power 5 यानी कि that is 1024. This comes out to be 405 upon 1024, roughly 40%, 39.5% के आसपास का चांसेस आएंगे। क्या ये क्लियर? ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड 10 times, find the probability of getting exactly 2 heads. We need exactly 2 heads when a fair coin is flipped 10 times. So what would be the probability of getting exactly 2 heads?
नाउ स्ट्रेट अवे सिंस वी नो कि फेयर कॉइन है, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल, ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इन दिस केस, तो स्ट्रेट अवे कह सकते हैं टोटल केसेस विल बी 2 to the power 10 एंड फेवरेबल केसेस क्या होंगे, वी नीड एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो 10c2 वैसे वी कैन अरेंज द हेड्स, तो 10c2 by 2 to the power 10 दैट इज 45, 10 into 9/2 45 upon 1024, दिस विल बी द आंसर। बट अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सो बाय फॉर्मूला वी नो कि 2 हेड्स चाहिए हमें, 2 हेड्स होंगे एंड रिमेनिंग 8 विल बी टेल्स, सो 10c2 वे से वी कैन सेलेक्ट दोज प्लेसेस फॉर हेड्स एंड हेड का प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो 1/2 to the power 2 फॉर हेड्स एंड 1/2 to the power 8 फॉर टेल्स, so this becomes 10c2 that is equal to 45 into 1/2 to the power 10 that is 1/1024, simple, okay। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारा था, जो सॉल्व करने के लिए हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, दैट इज अ बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, odds in favor of getting ahead are 2:3, if the coin is flipped 6 times then find the probability of getting at most 2 heads, क्वेश्चन कह रहा है at most 2 heads, so maximum number of heads is 2, less than equal to 2 heads is all that we require, so what should be the answer, pause the video and try to solve it, ठीक है। अब तो सब कुछ हमने समझ लिया, तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 हेड्स, सो केसेस क्या क्या बनेंगे हमारे, टोटल 6 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं, तो इधर देयर विल बी 0 हेड्स और देयर विल बी 1 हेड और देयर विल बी 2 हेड्स, दीज आर ऑल 3 केसेस, और तो कोई केस बनना नहीं है भाई, या तो 0 हेड्स आएंगे या फिर 1 हेड आएगा या फिर 2 हेड्स आएंगे, इजंट इट सो, ठीक है। अब अगर 0 हेड्स आने वाले हैं तो 0 हेड्स का सिलेक्शन कैसे करोगे, 6c0 आउट ऑफ 6 फ्लिप्स वी नीड 0 हेड्स, 6c0 मल्टीप्लाइड बाई हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज यहाँ पे हमें क्या गिवन है, odds in favor of getting ahead are 2:3, the probability of head this time is not equal to 1/2, probability of tail this time is not equal to 1/2, probability of head is equal to 2 are in favor, 3 against, total 5, so 2/5 is the probability of head and probability of tail will be 3/5, तो 6c0 into हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 टू द पावर क्या आएगा, 0 हेड सही है, तो 2/5 टू द पावर 0 एंड रिमेनिंग 5 ऑल 5 शुड बी टेल्स, यानी 3/5 टू द पावर 5, और यानी एडिशन, नेक्स्ट इज 1 हेड, तो 1 हेड का सिलेक्शन विल बी 6c1 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू द पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टू द पावर 4, और यानी एडिशन 6c2 बिकॉज वी नीड 2 हेड्स आउट ऑफ 6, 6c2 इंटू 2/5 स्क्वायर इंटू 3/5 टू द पावर 3, एक सेकेंड एक गड़बड़ कर रहे हैं, 606 इवेंट्स थे ना, तो टोटल 6 थे, तो यहाँ पे 6 आएगा, ये बदलेगा, भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी पावर 6, यहाँ पे आएगा पावर 5 एंड दिस विल बी पावर 4, क्या ये क्लियर है, ठीक है, गलती हो रहा था यहाँ पे, क्या ये पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद में कुछ वैल्यूज को कॉमन ले, 3/5 टू द पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो inside bracket this will be 6c0 that is equal to 1 into 2 power 5, 2/5 to the power 0 that is also equal to 1, 3/5 का square that will be equal to 9/25, 9/25, okay there was some disturbance, so 3/5 to the power 4, 9/25 plus 6c1 is equal to 6 multiplied by 2/5 to the power 1, यानी 2/5 ही आ जाएगा, और 3/5 to the power 4 को बाहर लेगा तो हमें बचा 3/5 only, plus 6c2 that is equal to 15 into 2/5 square that is 4/25, so 3/5 to the power 4 that is equal to 81 upon 625 into, this is 9, this is 36, 60, so 105 upon 25, and hence this is 81 into 21 divided by 3125, 81 into 21 divided by 3125, यानी कि that will be 1701 divided by 3125, this will be our answer for this question, is that part clear, ठीक है। आंसर आ जाएगा अपना 1701 अपॉन 3125, क्या ये क्लियर है। अगेन जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन दिस केस अगर हम इवेंट्स सारे के सारे इन्यूमरेट करेंगे, ठीक है, 6 टाइम्स हमने फ्लिप किया है, तो वी नो कि 1 केस हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड्स, अगर 2 हेड्स वाला ही केस लें कि हेड हेड एंड देन 4 सक्सेसिव टेल्स, तो यहाँ भी 2 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर ले हेड टेल हेड टेल टेल टेल, ठीक है, दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, यहाँ पे कि वी आर गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, बट अदरवाइज इफ देयर आर 3 हेड्स
and 3 tails. Now these two events, these are not equally likely because probability of head and probability of tail, they are not equal. दैट इज वाई यहाँ पे टोटल केसेस फेवरेबल केसेस वाला फंडा नहीं चलेगा जो हमारा अदरवाइज चल रहा था जब देयर वाज अ फेयर कॉइन. इन केस ऑफ फेयर कॉइन लेट अस से 6 कॉइन टॉसेस हमने किए इन केस ऑफ फेयर कॉइन एंड 2 ऑफ देम आर हेड्स रिमेनिंग 4 आर टेल्स और 3 ऑफ देम आर हेड्स remaining 3 are tails. So both these events were equally likely in case of fair coin because head के आने की probability और tail आने की probability was equal. तो वहाँ पे हम total cases में से फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करके फेवरेबल बाई टोटल से अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. बट यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक. ठीक है. इवेंट्स विद सेम नंबर ऑफ हेड्स विल बी इक्वली लाइकली बिकॉज वहाँ पे हेड का प्रोबेबिलिटी भी सेम नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होगा और टेल का प्रोबेबिलिटी भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. यानी कि वहाँ पे केसेस बिल्कुल सिनेरियो सेम होगा. बट जैसे ही हमारे नंबर ऑफ हेड्स चेंज हो जाएंगे तो इवेंट्स हमारी इक्वली लाइकली नहीं होगा. दैट इज वाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड हमें फॉर्मूला बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही करना पड़ेगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. बिकॉज दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि किसी लॉजिक को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई होगा, कहाँ पे क्यों दूसरा लॉजिक अप्लाई नहीं होगा. फॉर दिस रीजन ऑब्वियसली देयर इज नो अदर रीजन. ओके, क्लियर है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A goldsmith has 2 bags containing some colorful stones. First bag contains 4 red stones and 8 blue stones. Second bag contains 5 red stones and 5 blue stones. So find the probability of drawing a red stone if one stone is to be drawn from either of the 2 bags. किसी भी एक बैग से हमें एक स्टोन को ड्रॉ करना है. ठीक है. अब 2 बैग हमारे पास रखे हुए हैं. देयर आर 2 bags. ठीक है. 2 bags are there. In one bag we have 4 red stone and 8 blue stones. In second bag we have 5 red stones and 5 blue stones. Okay, and question is asking कि what is the probability of drawing a red stone if one stone can be drawn from either of the 2 bags. यानी कि हमारे पास दोनों में से किसी भी बैग से हम स्टोन को ड्रॉ कर सकते हैं. केसेस यहाँ पे क्या बनेंगे? ईदर वी आर ड्रॉइंग अ स्टोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग और रिजल्ट हमारा एक रेड स्टोन हो, और वी विल बी ड्रॉइंग अ स्टोन फ्रॉम द सेकंड बैग और रिजल्ट हमारा रेड स्टोन हो. इजंट इट सो? तो दोनों में से कोई भी एक बैग चूज कर सकते हैं, बैग 1 और बैग 2. ठीक है. नाउ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड. तो बैग 1 या फिर बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दोज विल बी इक्वली लाइकली. ठीक है. सेम चांसेस होंगे. 50% टाइम्स विल बी ड्रॉइंग फ्रॉम बैग 1, 50% टाइम्स विल बी ड्रॉइंग फ्रॉम बैग 2. तो पहला केस लेते हैं. लेट अस से वी आर चूजिंग फ्रॉम बैग 1, तो रेड फ्रॉम बैग 1. सेकेंड केस विल बी रेड फ्रॉम बैग 2 एंड ईदर ऑफ दीज 2 केसेस विल बी हैपनिंग. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा हमारा? इन द फर्स्ट केस बैग 1 से लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी 1/2. बैग 2 से लेने का प्रॉपर्टी क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी 1/2. अच्छा, बैग 1 से ले रहे हैं. देन इन बैग 1 वी हैव 4 रेड स्टोन्स एंड 8 ब्लू स्टोन्स. टोटल स्टोन्स आर 12. Total stones are 12. Out of 12 we have 4 red stones. The probability of drawing a red stone from bag 1, that will be 4/12. 4/12. और पहला इवेंट चूजिंग द बैग और सेकेंड इवेंट चूजिंग द रेड स्टोन फ्रॉम द बैग, बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा 1/2 into 4/12. देन और यानी एडिशन. For the second case 1/2 for choosing bag 2 और bag 2 में total stones है हमारे 10. Out of 10 we have to choose red which are 5. तो 1/2 into 5/10. अब 1/2 आ जाएगा कॉमन. इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 4/12 which is 1/3 प्लस 5/10 which is 1/2. तो 1/2 into 5/6 यानी कि आंसर विल बी 5/12. Probability of choosing a red stone if we are drawing one stone from either of the 2 bags, that will be equal to 1/2. क्या ये क्लियर है? अब 1/2 नहीं 5/12. ठीक है. दैट विल बी 5/12. क्या ये पार्ट क्लियर है? our answer will be 5/12. Okay. Clear. ठीक है. अब let us say we had 3 bags. 3 bags in total. Now first bag had 3 red stones. Second bag had 2 red stones. Third bag had 4 red stones. First bag had 7 blue stones. Second bag had 8 blue stones. And third bag had 6 blue stones. And there was a 30% chance of choosing the first bag. ठीक है. 30% chance of choosing the first bag. 50% chance
of choosing the second bag. Chance of choosing this bag. So we need to find out probability of red stone, finding a red stone, drawing a red stone from either of the bags. Either of the bags. So what will be the answer? Comment about the answer. What will be the answer? 30% chance of choosing the first bag, 50% for the second bag, और हर एक बैग में नंबर ऑफ रेड बैग्स एंड ब्लू बैग्स. टोटल यही है. रेड बैग नहीं, रेड स्टोन्स और ब्लू स्टोन्स. यही दो चॉइसेस है हमारे पास, इधर रेड और ब्लू. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो कमेंट में आंसर मेंशन करना व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैग हैज सम बॉल्स ऑफ रेड, सम बॉल्स येलो, सम बॉल्स ब्लू. यानी रेड बॉल्स, येलो बॉल्स, ब्लू बॉल्स. यही है टोटल हमारा बैग के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ड्रॉ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली. वी आर ड्रॉइंग रैंडमली वन बॉल एंड पुटिंग बैक आफ्टर नोटिंग द कलर. हमने बॉल को ड्रॉ किया, देखा कलर क्या है, कलर को नोट किया और फिर वापस से उस बॉल को बैग में रख दिया. ठीक है. सो दैट इज द सिनेरियो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 येलो बॉल सक्सेसिवली इन 2 ड्रॉज इज 4/9. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो then again yellow, that is 4/9. And similarly probability of getting 2 red balls successively in 2 draws is 1/81. And probability of red then again red, that is 1/81. Find the probability of getting balls of all the colors in 3 successive draws. अब देखो येलो पहले हमने बॉल ड्रॉ किया, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर अगेन रिप्लेसिंग द बॉल. विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है केस हमारा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने नोट किया कलर, उसके बाद फिर वापस उस बॉल को बैग में पुट कर दिया. यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स आर नॉट चेंजिंग इन द फर्स्ट इवेंट एंड इन द सेकेंड इवेंट. जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था ना कि वहां पे नंबर ऑफ बॉल चेंज हो रहा था, डिपेंडेंट इवेंट्स था. बट यहाँ पे पहला इवेंट और दूसरा इवेंट इंडिपेंडेंट है. क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि पहले इवेंट के टाइम पे जो नंबर ऑफ बॉल्स था, टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स था हमारे पास येलो या रेड, वही सेम हमारा सेकंड इवेंट के टाइम पे भी है. तो बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. पहले इवेंट के आउटकम से सेकंड इवेंट हमारा डिपेंडेंट नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, अगर पहले वाले इवेंट के टाइम पे लेट अस से प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो दैट इज इक्वल टू ए, तो सेकंड इवेंट के टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या होगा? दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ए, बिकॉज नंबर ऑफ येलो बॉल्स भी चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ टोटल बॉल्स भी चेंज हो रहा है. ए बेसिकली क्या होगा? नंबर ऑफ येलो बॉल्स आउट ऑफ टोटल बॉल्स. एंड दिस ए इंटू ए इज इक्वल टू 4/9. ए स्क्वायर इज 4/9, यानी कि यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जा रहा है 2/3. सिमिलरली फर्स्ट इवेंट के टाइम पे probability of R, probability of red balls, if that is equal to B, second event के टाइम पे also this will be equal to B, and B will be equal to basically क्या? Number of red balls divided by number of total balls. So and B square is equal to 1/81, यानी कि यहाँ से B आ जा रहा है हमारा equal to 1/9. A is equal to 2/3, B is equal to 1/9. And probability implies कि yellow out of total. तो अगर total balls are equal to 3, then yellow balls are equal to 2. If total balls are equal to 3, then yellow balls are equal to 2. Similarly, if total balls are equal to 9, then red balls are equal to 1. तो 3 और 9 का मल्टीपल क्या होगा? 9 होगा. अगर if we are assuming that 9 are total number of balls, total are 9. Out of these 9, red कितना होगा? Red will be 1, yellow will be 6, because 3 के केस में 2 होता है, 2/3. 9 का 2/3 is equal to 6, and remaining will be blue. तो blue आ जाएंगे 2. 1 red, 6 yellow, and 2 blue. Isn't it so? Out of total 9, 1 will be red. Red 1, yellow 6, and 2 blue. Out of total 9. ठीक है. या कहते हैं red will be 1x, yellow will be 6x, blue will be 2x, and total will be 9x. Question is asking find the probability of getting balls of all the colors in 3 consecutive draws. Probability of getting balls of all the colors in 3 consecutive draws. That implies 3 draws हम टोटल कर रहे हैं, 3 कलर की बॉल्स हैं. तो हर एक ड्रॉ में वी नीड अ बॉल ऑफ डिफरेंट कलर. यानी कि दिस कुड बी कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल, सेकंड में येलो, थर्ड में ब्लू और रेड, देन येलो और ब्लू, देन येलो, देन रेड और ब्लू, देन रेड, देन येलो और रेड और ब्लू का तो हो गया सारा का सारा कहानी. देन येलो रेड ब्लू, फर्स्ट येलो, देन रेड, देन ब्लू या येलो ब्लू रेड. टोटल 6 केसेस बनेंगे हमारे और बेसिकली 3 कलर्स हैं 3 ड्रॉज में. तो 3 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज दीज कलर्स. किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाने वाला है. Isn't it so? ठीक है. किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट अस से हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, देन येलो, देन ब्लू. तो दैट विल कम आउट टू बी, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/9. ठीक है. और फिर से हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो अब अगेन सिनेरियो सेम रहेगा. येलो का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दैट विल बी 6/9 यानी 2/3. एंड देन ब्लू का प्रोबेबिलिटी विल बी 2/9. तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, येलो एंड ब्लू. ठीक है. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कलर balls, 3 different
colored balls in 3 dots, that will be equal to 3 factorial into this value. 3 factorial into this value, which is equal to 4 by 243. And this is 6. 4 into 6, 24 by 243. यानी कि 8 upon 81. This will be the answer. 8 by 81 हमारा आंसर आ जाएगा. क्या क्लियर है? और x तो वैसे भी कैंसिल आउट ही हो रहा है, बट मेंशन इसलिए किया बिकॉज किसी और क्वेश्चन में कहीं पे अगर वैल्यू डिपेंड करेगा, मान लो फॉर एग्जांपल x के बाद में x-1 आ गया, तो फिर वहाँ पे x का वैल्यू विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल. ठीक है, वहाँ पे हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि x की वैल्यू पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. इन सम अदर क्वेश्चन विद सम अदर डिफरेंट वैल्यूज विद सम अदर सिनेरियो द आंसर माइट हैव बीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दैट इज व्हाई ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ बॉल्स एक्जैक्टली 9 नहीं है, दे आर मल्टीपल ऑफ 9. दे कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 9. इजंट इट सो? नंबर ऑफ बॉल्स वी कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. उसके लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तभी हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स या येलो बॉल्स या फिर ब्लू बॉल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे. हाँ, वी नो फॉर श्योर दैट नंबर ऑफ येलो बॉल्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6, नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी अ नंबर ऑफ 9. इतना तो पता है, गिवन इन्फॉर्मेशन से इतना तो पता चल रहा है. क्या ये क्लियर है? सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी हमने सीखा वो समझ में आएगा. और इस सेशन में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, जो भी क्वेश्चन सीखे, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सीखाओ, ऑड्स एंड फेवर सीखाओ, या बाकी कॉन्सेप्ट सीखो, तो उनमें मजा आएगा तुमको. मेक श्योर टू गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स. एंड फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो बेहिचक ऑलवेज आस्क योर डाउट्स, क्योंकि जब तुम अपना डाउट पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारा ही डाउट होगा. डेफिनेटली वही डाउट तुम्हारे अलावा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आया होगा, उनके दिमाग में आया होगा, या फिर नहीं भी डाउट आया होगा तो एटलीस्ट उस डाउट के एक्सप्लेनेशन में उनको क्लैरिटी आएगा. So that is very important. That is why always ask your doubt, whatever doubt there is. ठीक है? So that's all in this session. And if you like this session, then make sure to hit the like button as well and spread the word, share with others so that this session also helps others. और फिर उससे मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है. So make sure to hit the like button and subscribe to the channel. That's all. And for any preparation related queries, you can always message me on Telegram at ADITYKT. That is all. Bye bye. Take care and keep learning.